students, good afternoon. How are you all? I just hope you all are fine. So today what we will be doing, I will be starting the thing with the basic. Okay, let's start with basic. You should know that what is a sentence and how you have to do it, and what you have to do to speak a sentence. Okay, so let's start. So basically we'll start with the word. So you all know alphabets, right? You all know alphabets. Okay, so there are 26 alphabets from A to Z, right? A to Z. So what is that? When you speak a letter, so you call it letter or a alphabet, right? Or a letter or an alphabet, right? But when you have to speak a word, okay, let's talk about a word. So when you have to speak a word, what you will do, you will arrange these alphabets. Suppose you have written CAT, cat. So you have arranged these three alphabets, three letters, and then it made a word. Okay, so similarly cat, mat, hop, okay, mop, dog. So similarly these are some words. So these were 3-letter words which I told you, right? So you can make other words also, like group, okay, or we can call collection, okay, or material. So these are also words, but the difference is they were having 3 letters, they were having more letters. Okay, so this is a simple thing. Now I will tell you today about the sentence. So we got these things. ये आप समझ गए होंगे अभी तक. It is very easy. Okay, this was the simple basic of conversation. So now come to sentence. What is a sentence? Sentence होता क्या है? Basically what do you know about a sentence? Sentence होता है जो हम words को, group of words are arranged together and they make a sense, a meaning. Okay, suppose I have written, I have given you one sentence. Hero is Ravi. Oh, this is a sentence. Yes, sentence ही तो है ना? Sentence है ना ये. इसमें देखो group of words हैं और they are arranged in a line. तो sentence हुआ ना? No, this is not a sentence. Why? Because it is not giving any meaning. ये meaning नहीं दे रहा है, right? So this is not a sentence. तो इसका sentence अगर हम बनाएंगे तो क्या बन सकता है? Ravi is a hero, right? Okay, so ये sentence हुआ, right? Yes, yeah. Why? Because ये इसमें group of words भी हैं and plus they are arranged in a proper way and they make a meaning, they make a sense. Okay, it is a complete sense. Okay, so what is a sentence? What you get to know about this thing जो अभी तक आपको explain किया है, इससे आपको क्या पता चल रहा है? What is a sentence? The sentence is a group of words that make a complete sense or meaning. Okay, जो एक proper sense देते हैं, meaning देते हैं, that is known as sentence. Okay, and कुछ ऐसे भी होते हैं words. Okay, some words are there. जैसे हमने बोला in the evening. Okay, or ups and downs. Okay, और in the long run. तो ये क्या हो गए? इनका मीनिंग कुछ समझ में आ रहा है, राइट? हमें कुछ समझ में आ रहा है, बट दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर, मतलब इसका प्रॉपर मीनिंग नहीं हमें समझ में आ रहा कि प्रॉपर नहीं है. बस इन द इवनिंग की इवनिंग में अप्स एंड डाउन्स, ऊपर नीचे, ठीक है. इन द लॉन्ग रन, बहुत दूर तक की बात हो रही है. मतलब ये हमें समझ में आ रहा है कि कुछ मीनिंग हमें समझ में आ रहा है. तो व्हाट आर दीज कॉल्ड? दीज आर नोन एज phrases or phrases. What you can call them? These are known as phrases. Okay, so आपको कैसे पता चला these are phrases? Because they give some sort of meaning, some sort of sense, but not a complete sense. So but sentence give us a complete sense. Okay, so I hope I am clear to you. So मैं starting से ही लेकर चल रही हूँ जिससे आपको English बोलनी भी आ जाए और फिर आप conversation भी अच्छे से कर सको. So we'll play a game. Okay, so related to words. वो हम game खेलेंगे and it is very interesting game. बहुत easy game है. Like you all play अंताक्षरी. आती है ना सबको अंताक्षरी खेलनी? Similarly, we'll play a game of words. Words अंताक्षरी we'll play. Okay, वो हम खेलेंगे. So कैसे खेलेंगे?
आई टेल यू द रूल्स, मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम गाना गाते थे ना, गाने में जो लास्ट वर्ड आता था, लास्ट लेटर जो आता था, शब्द आता था, उससे हम दूसरा गाना स्टार्ट करते थे। सिमिलरली आपको क्या करना है, जो मैं वर्ड बोलूंगी, सपोज मैंने बोला है डॉल, डॉल DOLL डॉल, तो डॉल में लास्ट वर्ड क्या आया, एल, सॉरी लास्ट लेटर आपका आया एल, तो आपको जो सामने वाला पर्सन है उसको एल से वो लेटर बोलना है। तो मतलब 2 लोग 3 लोग कितने भी लोग हम इसमें खेल सकते हैं। सो यू कैन हैव फन, यू कैन एंजॉय विद दिस गेम। आप अपने दीदी भैया मम्मा पापा सबके साथ, पूरी फैमिली में एक साथ, जैसे लॉकडाउन है, हम ऑलरेडी घर पर बैठे हैं एंड वी आर गेटिंग सो मच बोर, राइट, बहुत बोर हो रही है। सो व्हाट यू कैन डू, आप अपनी फैमिली को, पूरी फैमिली को लेके आप उनसे ये वाला गेम खेलेंगे। सो इससे क्या होगा, आपको इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, आप इंजॉय भी हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, देन आपको इंग्लिश के वर्ड्स भी आ जाएंगे और हार्ड वर्ड्स बोलना है आपको, सामने वाले पर्सन को हराना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको एक बार स्टार्ट करके बताती हूँ, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट एंड आई विल प्ले। ओके, तो आपको उधर से सामने वाला पर्सन बोलेगा एंड आई विल स्पीक, तो हम दोनों वो खेलेंगे। तो अभी आपको दिखाएंगे हम कि कैसे खेलते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो आई विल स्पीक, और इसमें रुकना नहीं है, नहीं तो मार्क्स कट हो जाएंगे। ओके, सो एलिफेंट, टाइगर, रैबिट, टॉल, लायन, नेस्ट, टमाटो, अपॉर्चुनिटी। ओह वाओ, इट्स अ हेवी वन। ओके, सो आई थिंक आपको ये समझ आ गया है। देखा, मैंने अपने भाई के साथ ऐसे प्ले किया है, ऐसे ही आप अपनी पूरी फैमिली के साथ प्ले कर सकते हैं। आई होप आपको वॉइस भी आ गई होगी। सो ऐसे आपको खेलना है। सो व्हाट आर द रूल्स, आपको कंटिन्यूएशन रखनी है, स्टॉप नहीं होना है, एंड सेकेंड थिंग आपको सामने वाले पर्सन को हराना है, एंड स्पीक हैवी वर्ड्स। जैसे अभी भैया ने बोला ना, ऐसे आपको हैवी वर्ड्स बोलने हैं, सो दैट आपको इंग्लिश और अच्छे से आ जाए। ओके, देन हम आगे का धीरे धीरे करके नेक्स्ट पार्ट पे भी चलेंगे। इंग्लिश भी आएगी, आपकी ग्रामर भी अच्छी हो जाएगी और कन्वर्सेशन भी आ जाएगी। ओके, मैंने आपको बताया था वर्ड और सेंटेंसेस के बारे में, आपको बताया था वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस जो होता है आपका, वो क्या होता है, वो हमेशा आपका जो स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर, ठीक है, इससे स्टार्ट होता है और एंड होता है फुल स्टॉप। तो जो भी आप कोई भी सेंटेंस आप लिखेंगे, सपोज मैंने लिखा आई एम अ गर्ल, तो आई का ये जो फर्स्ट लेटर हुआ, ये मेरा कैपिटल होगा, आई एम अ गर्ल, और लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा, ठीक है। जो भी सेंटेंस आपका होता है उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। दिस इज फुल स्टॉप, इसको हम बोलते हैं फुल स्टॉप। ओके, आई होप आई एम क्लियर टू यू, इतना समझ में आ गया। देन मैं आपको बता दूं, जो एक सेंटेंस बनता है, इसमें सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में आपका आता है वर्ब। ओके, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। ओके, तो इसका जो पैटर्न होता है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज सेंटेंस मेड अप ऑफ, सेंटेंस किसका बनता है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट, फिर बीच में आती है वर्ब, देन लास्ट में जो लास्ट पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो यहाँ मैंने आपको सेंटेंस के बारे में बताया और मैंने आपको ये भी बता दिया, ठीक है। और अब क्या होता है, अ सेंटेंस ऑलवेज हैज़ अ वर्ब इन इट, सेंटेंस में वर्ब हमेशा होती ही है। अगर किसी में वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं है। ओके, क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे बताती हूँ। फ्रेज भी बता दिया मैंने आपको, जिससे हमें कुछ पता चलता है, हमें मीनिंग मिलता है लेकिन आधा मीनिंग पता चलता है, उसे हम बोलते हैं फ्रेज। जिससे हमें पूरा मीनिंग पता चलता है, उससे हम बोलते हैं सेंटेंस। ओके, आपको ये भी बता दिया 3 पार्ट से सेंटेंस बनता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, आगे आपको बताया जाएगा वर्ब में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि वर्ब क्या होती है। सब्जेक्ट आपको, अच्छा पहले सब्जेक्ट से स्टार्ट करती हूँ। सब्जेक्ट जो फर्स्ट पार्ट है, सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, दैट विल बी नोन एज सब्जेक्ट, द पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर स्पीकिंग अबाउट। अब यहाँ पे आई यानी मेरे बारे में बात हो रही है, सो दिस इज
सब्जेक्ट। ठीक है, ये तो सिंपल सेंटेंस है आपका, आई एम अ गर्ल हो गया, सिंपल सब्जेक्ट, सॉरी सिंपल सेंटेंस हुआ, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है, दो चीज़ से आपका सेंटेंस बनता है, एक तो सब्जेक्ट हो गया, टू पार्ट्स में अगर हम मेन देखें तो हमारा सेंटेंस जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज सब्जेक्ट एंड द अदर वन इज प्रेडिकेट। ओके, ये टू पार्ट्स में आपका डिवाइड है सेंटेंस। ओके, एक आपका हो गया सब्जेक्ट, अदर पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया प्रेडिकेट। ओके, सब्जेक्ट में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, आई, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, या सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया राम या रोहन या सीता, गीता, ठीक है, तो मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। और उसके बारे में क्या बात कर रही हूँ कि वो एक लड़की है या वो एक लड़का है, तो ये हमारा हो गया प्रेडिकेट कि उसके बारे में हम क्या बात कर रहे हैं। ओके, सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो 4 तरह के सेंटेंसेस। एक हो गया असर्टिव सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंसेस को हम डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस या असर्टिव सेंटेंसेस। देन सेकंड आया आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। देन थर्ड आया आपका इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। देन नेक्स्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। क्या हुआ आपका, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो अब हम इन चारों सेंटेंसेस के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपके 4 हो गए, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। अब मैं आपको इन चारों के बारे में एक्सप्लेनेशन करती हूँ कि क्या होते हैं, इनमें क्या होता है और हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा सेंटेंसेस है। ओके, सो फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो हमें क्या बताता है, किसी चीज़ के बारे में बताता है, इट से और स्टेट समथिंग, कोई चीज़ के बारे में हमें बताता है। जैसे कि एग्जांपल क्या हो गया, सीमा वर्कड हार्ड, सीमा बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। ठीक है, या फिर राम इज प्लेइंग, तो राम क्या कर रहा है, राम इज प्लेइंग, प्लेइंग फुटबॉल सपोज। ठीक है, राम क्या कर रहा है, राम फुटबॉल खेल रहा है, तो इससे हमें पता चल गया, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, राइट, राम। ठीक है, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और ये हो गई हमारी वर्ब, क्या कर रहा है वो, प्लेइंग। ठीक है, प्लेइंग कर रहा है, खेल रहा है वो। ओके, और ये सेंटेंसेस हमें कैसे पता चलता है इनकी क्या है, एक तो ये हमें किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, सिंपल सेंटेंसेस हो गए आपके, किसी भी टेंस में हो सकते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। ओके, वो आगे की चीज़ है, वो हम आगे आपको बताएंगे। तो स्टार्टिंग हमारी इसी से थी, देन ये एंड होता है फुल स्टॉप से, इसमें फुल स्टॉप लगता है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये असर्टिव सेंटेंस है। ओके, इतना क्लियर हुआ। आगे चलते हैं इंटेरोगेटिव पे। इंटेरोगेटिव मतलब इंटेरो वर्ड से आपको पता चल रहा है इंटेरोगेट कर रहे हैं हम किसी के बारे में। लाइक आप सबने CID देखा होगा, CID में क्या करते हैं वो, इंटेरोगेट करते हैं, केस पे छानबीन करते हैं, है ना, पुलिस छानबीन करते हैं जब कुछ हो जाते हैं, सपोज किसी के घर में चोरी हो गई तो पुलिस छानबीन करते हैं ना, कौन था चोर, कौन था बताओ, सबको ढूंढती हैं, है ना, जो जो उनको क्लू मिलते हैं उस पर वर्क ऑन करती है, राइट, तो इंटेरोगेट करती है। तो इंटेरोगेट मतलब से आपको पता चल रहा है कि हम इंटेरोगेट कर रहे हैं, मतलब कि हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ओके, दैट वेयर वर यू, आप कहाँ थे इस टाइम पे, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, व्हाट इज़ योर नेम, जो भी हम चीज़ें पूछते हैं, जैसे CID में पूछते हैं व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट वर यू डूइंग एट दैट टाइम, व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, या इसके साथ आपका क्या रिलेशन है, ये क्या है, यहाँ क्यों गए थे, कहाँ थे, ऐसे ऐसे करके पुलिस इंटेरोगेट करती है। तो सिमिलरली जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस, यानी कि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप सिंपली उसको देख करके बता देंगे कि वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन होता है और एंड में लगता है क्वेश्चन मार्क। जैसे कि आपकी सिंपल सेंटेंस हो गया कि व्हाट इज योर नेम, ओके, व्हाट आर यू डूइंग, तो ये आपका हो गया सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग रहा है। ओके, सो दीज आर योर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। समझ आ गया, सिंपल है बहुत। नाउ इम्पेरेटिव पे आते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें कोई ऑर्डर दे रहा है, आपको उस सेंटेंस को रीड करके पता चल रहा है कि वो ऑर्डर दे रहा है या तो एडवाइस दे रहा है या फिर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि आई एम सेइंग ओपन द डोर, मैं बोल रही हूँ गो एंड ओपन द डोर। ठीक है, तो आई टोल्ड जाओ और जाके गेट खोलो, तो मैं ऑर्डर दे रही हूँ ना। ठीक है, या फिर मैं कह रही हूँ प्लीज़ ब्रिंग 1 ग्लास ऑफ वाटर टू मी। ठीक है, मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ मेरे को 1 ग्लास पानी दे दो, तो प्लीज़ लगा रही हूँ, तो जहाँ प्लीज़ लग गया उससे आपको पता चल गया कि वो रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो हम जैसे कि सपोज ऑर्डर की बात करते हैं, तो ऑर्डर में आपका क्या हो गया, ऑर्डर में क्या हो गया, गो अवे। ठीक है, या गो
एंड ओपन द डोर। ये हो गया आपका ऑर्डर कि जाओ और गेट खोलो, मैं ऑर्डर दे रही हूँ, ठीक है, ये मैंने ऑर्डर हो गया। या ब्रिंग द बुक, जो भी मैं बोल रही हूँ, कम हेयर, गो अवे, ये सब क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका ऑर्डर। ओके, ठीक है, जो भी हम आपको टीचर बोलते हैं, कोई बड़ा जना बोलता है तो वो ऑर्डर देता है, राइट। अब आपकी बात करते हैं एडवाइस की। कोई एडवाइस कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है कि बेटा टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ओके, डोंट गो आउट आउटसाइड, कि आपको पता है करेंट सिचुएशन इज़ कोरोना कोविड, सो डोंट गो आउटसाइड, स्टे एट होम। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, एडवाइस। ओके, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हम आपको बता रहे हैं, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। ओके, तो वो आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया, ये मैं यहाँ लिख रही हूँ बिकॉज यहाँ स्पेस नहीं है, तो ये आपकी हो गई एडवाइस। ओके, ये आपकी हो गई एडवाइस। अब बात करते हैं रिक्वेस्ट की। रिक्वेस्ट की बात करते हैं, ऑर्डर हो गया हमारा, एडवाइस हो गया, रिक्वेस्ट की बात करते हैं। रिक्वेस्ट मतलब हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या वर्ड यूज़ हो जाता है रिक्वेस्ट में, रिक्वेस्ट में क्या वर्ड यूज़ होता है, प्लीज़, प्लीज़ गिव मी पेन, प्लीज़ मुझे पेन दे दो, या प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ टेक वो सॉरी प्लीज़ ब्रिंग मी दिस बुक। जहाँ भी वो प्लीज़ वर्ड यूज़ हो गया वो आपका हो गया रिक्वेस्ट। गिव मी योर पेन प्लीज़, ठीक है, प्लीज़ लेट मी एक्सप्रेस माई व्यूज़, प्लीज़ लेट मी स्पीक, ठीक है। तो जहाँ प्लीज़ वर्ड यूज़ हो जाता है वो आपकी हो गई रिक्वेस्ट। ओके, सो नेक्स्ट इज़ योर एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी क्या हो गया, जहाँ पे अब हाँ इसमें लगता है आपका फुल स्टॉप का साइन, ठीक है, सिंपल सेंटेंस और फुल स्टॉप साइन। तो आपको इससे पता चल जाएगा इम्पेरेटिव और डिक्लेरेटिव, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें आपको पता चल जाएगा कोई सिंपल बात बता रहा है तो वो हो गया असर्टिव, कोई चीज़ स्टेट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, कोई मतलब एडवाइस दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट दे रहे हैं, तो वो हो गया आपका इम्पेरेटिव। नाउ कमिंग टू एक्सक्लेमेटरी मार्क, इसमें आपका वो फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं, सडन फीलिंग, जैसे सडनली कोई एक्सपायर हो गया, तो या फिर आपने कोई बहुत बहुत ब्यूटीफुल चीज़ देख ली तो आप बोलते हैं वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, है ना, कितना सुंदर फ्लावर है ना। हिंदी में भी हम बोलते हैं कितना सुंदर फ्लावर है, अरे ये बेबी कितना प्यारा है ना। तो ये जो हम अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, तो ये हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। जैसे हमने सपोज बोला व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, है ना, ब्यूटीफुल फ्लावर की बात हो रही है। इसमें लास्ट में लगेगा एक्सक्लेमेटरी मार्क, इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, वो एक्सप्रेस कर रहा है वाओ कि वो अरे वो फूल कितना सुंदर है ना, ठीक है। और एक हम जब हम सैड को एक्सप्रेस करते हैं तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं अलास, ALAS, अलास ही इज़ नो मोर, कि वो नहीं है, वो कोई एक्सपायर हो गया, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आई एम क्लियर टू यू, ठीक है। इसमें आपका हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। कल हमने किया था असर्टिव और इंटेरोगेटिव, तो आपको चारों सेंटेंसेस एक्सप्लेन कर दिए हैं, ओके। तो आपको चारों सेंटेंसेस एक्सप्लेन कर दिए हैं, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग द प्रैक्टिस स्टूडेंट्स, बाय बाय।